17 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ 17 ਨੂੰ ਮਾਰਤੇ 22 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋ ਆਂਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਅਸਲਮ ਤੇ ਬੁੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ पता लग गया भी उत्थे लाश लटकियां हुई। लड़की की जो वालदा थी वो अपने दोनों बच्चों को मना के किसी तरीके से कन्विंस करके वो अपने साथ इधर 566 गाफवे के अंदर लेके आ जाते हैं और लेके आने के 3 दिन बाद जो है ये जो डेड बॉडीज़ हैं हमें रिकवर्ड होती हैं। जो लड़की की लाश है वो तकरीबन 3 दिन पुरानी होती है और जो लड़का है उसकी 33 घंटे लाश जो है वो पुरानी होती है, जिसको हैंग किया गया होता है लड़के को और लड़की जो है ज़मीन पे पड़ी होती है। एक होलनाक वाक़या 566 गाँव में पेश आता है, जहां पुलिस को इतला मिलती है कि वहां पर एक ढारी के ऊपर 2 लाशें जो हैं, एक लाश जो लड़के की थी वो लटकी हुई थी और जो लड़की की लाश थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी की इतला मसूल होती है, जिससे पूरे इलाके में खौफ हराम पैदा हो जाता है कि आखिर ये क्या वाक़या पेश हुआ है। इस बारे में मज़ीद जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो जो लड़का होता है वासिफ उर्फ मलंगी और उसकी सुतेली बहन जो दूसरी लाश होती है रुबाब की, वो वहाँ से मसूल होती है। इस बारे में मज़ीद हम क्राइम स्टोरी में जानते हैं कि आखिर ये क्या वाक़या पेश आया। 6 महीने का मैं पालिया जी, 18 साल हो गया तो मां नूं मिलन लग गया जी। तो मैं मना करता जी, लोग कहते भी मां नूं मिलता मिलन दो। 4 महीने हो गया मां को मिलना रोकता जी। वो भरा नाल गल करी भैन ने भी मैं भरा मेरा होर पासे रिश्ता कर दिया मैनू लै जा। वो लै गया, साढ़े ते पर्चा हो गया जी गवाह का। वो कुड़ी बयान दे के भी मैं भरा मैं कहना गवाह हुई हाँ, सानू चौन जज दो, चौन के बयान के जी तो फारग हो गई। वो फिर हाई कोर्ट अपील की, वो थोड़ा करके मां प्यो तो लै आए। 17 तरीक का वाक़या 17 ਨੂੰ ਮਾਰਤੇ 22 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋ ਆਂਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਤੇ ਅਸਲਮ ਵੇਚਿਆ ਜੀ, ਅਸਲਮ ਤੇ ਬੂਟਾ ਮਾਰਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤੇ ਪੀਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ। ਵਾਸਫ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕੰਮ ਕਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਜੀ ਰਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪੈ ਤੇਲਾ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸੁਤੇਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਲਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਮਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਸੀ ਸਿਰੇ ਨਾਲ। ਆਖਿਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ। ਅਸਲਮ ਦੇ ਬੂਟਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਦਾ 4 ਤਰੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੋ ਆ ਵਾਸਫ ਦੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਕਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਮੈਂ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਗਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸੁਲਾ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਸਫ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦਫਨ ਗੁਸਲ ਗਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਦਫਨਾਏ ਆ
ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦੇਵੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਗਿਆ ਪਿੰਗੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇੱਥੋਂ ਥਾਣਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਇਆ ਸਰ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। 5-7 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਪੁੱਤ ਰਹਿ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬੂ ਇੰਝ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹਣਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵਿਆਹਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। वासिफ की उम्र कितनी थी? ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ 17 ਕੁ ਸਾਲ, 18 ਸਾਲ 17। जी हमारे पास ना एक कॉल मौसूल होती है, हमें एक शहरी कॉल करता है कि जी 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो वहाँ पे 563 गाबे के एक वीरान सा डेरा है वहाँ पे पड़ी हैं। तो जब मैं मौके पे पहुँचता हूँ, मेरे एसपी साहब मौके पे पहुँचते हैं और डीएसपी साहब, हम पीएफएससी की टीम को लेके वहाँ पे पहुँचते हैं। तो जो उसका सरसरी मुलाहिजा करते हैं, जो लड़की की लाश है वो तकरीबन 3 दिन पुरानी होती है और जो लड़का है उसकी तकरीबन 24 से 30 घंटे लाश जो है वो पुरानी होती है, जिसको हैंग किया गया होता है लड़के को, और लड़की जो है ज़मीन पे पड़ी होती है। तो मज़ीद जो है वहाँ पे चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि इनकी शनाख्त होती है। लड़के की उम्र जो है वो वासिफ उर्फ मलंगी है, जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल है, और जो लड़की है उसका नाम रुबाब फातिमा है और उसकी उम्र है 14 साल। तो जो लड़की का वालिद है वो आके उनको वहाँ पे शनाख्त कर लेता है। तो उसके बाद आज से मैं आपको 4 माह पीछे लेके चलता हूँ। 4 माह पहले हमारे पास एक FIR लॉन्च होती है, जो कि मुलजिम अरशद की मुद्दत में, जो लड़की का हकीकी वालिद है, उनकी मुद्दत में एक FIR लॉन्च होती है जी कि मेरी बेटी को जो है ना, उसके भाई ने, जो सुतेला भाई है जिसका नाम वासिफ उर्फ मलंगी है, उसने अपने चचा और अपने वालिद के साथ मिल के अगवा कर लिया। तो इस FIR का होने के 2 दिन बाद जो लड़की है वो 164 की स्टेटमेंट में ये बताती है कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपनी मर्ज़ी से अपने भाई के साथ चली गई हूँ। उसके बाद तकरीबन 2-3 माह गुजर जाते हैं ऐसे ही। तो ये लड़की का जो वालिद है वो एक रिट कर देते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो हाई कोर्ट के अंदर भी लड़की यही स्टेटमेंट देती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। उसके बाद जो है लड़की की जो वालदा थी वो अपने दोनों बच्चों को मना के किसी तरीके से कन्विंस करके वो अपने साथ इधर 566 गाफबे के अंदर लेके आ जाते हैं, और लेके आने के 3 दिन बाद जो है ये जो डेड बॉडीज़ हैं हमें रिकवर्ड होती हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि तकरीबन 4 माह पहले इन्होंने एक FIR करवाते हैं कि बेटी जो हुई है वो अगवा हो गई है। जी जी। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी कि इनको ये FIR करवानी पड़ी बेटी के अंदर क्योंकि वो अगवा हो गई है? तो उसके पीछे क्या मकसद है? जी, बतौर उनके वालिद के, जो उनके वालिद थे, उनका कहना था कि मेरी जो बेटी है उसके साथ उसके जो सुतेला भाई है उसका कोई गलत ताल्लुक़, वो गलत रिलेशन बिल्ड हो गया था, तो जिसकी वजह से वो उसको अपने साथ लेके चला गया था। और उसके बाद जब आप बता रहे हैं कि 4 माह के बाद आपको इत्तला मिलती है कि दोनों की जो लाशें हैं वो आपको एक की लटकी हुई होती है और जी नीचे पड़ी होती है, जी। उसके बाद जो आप इंटरोगेशन शुरू करते हैं जी, कि उसके अंदर क्या आपको मिलता है कि ये क्या सारा वाक़या था, क्यों उन लोगों को खुदकुशी करनी पड़ी या उनको मारा गया, क्या उसके अंदर रखा है? जी, क्योंकि इस वाक़े की एक बहुत ज़्यादा सनसनी फैल गई थी क्योंकि 2 जो हैं वो बहन भाई थे और बिल्कुल माइनर एज थी उनकी डेड बॉडीज़ मिलने के बाद जो हमारे CPO साहब हैं तनवीर हुसैन साहब, उन्होंने, और जो RPO साहब हैं सुहेल अख्तर सुगैरा साहब ने एक स्पेशल टीम बनाई इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसकी सरबराही जो है SP जड़ावाला उन्होंने की। तो वो विदिन अ फ्यू आवर्स जो हमने ना इंशाल्लाह इस मुकदमे को ट्रेस आउट कर लिया, और जो लड़की की वालदा थी नुसरत बीबी, उसको इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि मैंने अपने खावंद मोहम्मद अरशद के साथ मिलकर, और उसके 2 चचा आज़ाद भाई थे असलम और बूटा, उनके साथ मिलके मैंने ये वकूआ सरजद किया है। उसके बाद हम एक FIR लॉन्च करते हैं 302 की, जो कि वासिफ उर्फ मलंगी के हकीकी वालिद फ़कीर मोहम्मद की मुद्दत में हम लोग वो मुकदमा दर्ज करते हैं। सर बताइएगा अभी तक जो कितने मुसलमान जो है पकड़े जा चुके हैं, कितने दोषी हो चुके हैं, बताइए। जी, इसमें 5 नामजद मुलजिम हैं FIR के,
जिसके अंदर 3 जो मुलजमान हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। इनमें से एक है नुसरत बीबी जो कि लड़की और लड़के की वालदा थी, वो जुडिशल हो चुकी हैं, और 2 बंदे हमारे पास, एक अरशद और एक उसका कज़न है नसीर, वो हमारे पास रिमांड पे हैं। जैसा कि आपने क्राइम स्टोरी के अंदर देखा कि मकतूला रुबाब जो है उसके सगे वालिदैन जो है उन्हीं ने उनको गला दबा के कत्ल किया। अब मज़ीद देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आता है। हम मज़ीद क्राइम स्टोरी के साथ दोबारा जरांवाला से हाज़िर होंगे। नुमाइंदा एक न्यूज़ हाफिज़ इजाज़ दो जरांवाला से।